honored by a sheer commitment to explore the human tension in all its subjects. Through short stories, history, and novels, we endeavor to capture the trials of our times, to challenge conventional boundaries of thought, and to inspire transformative change. For me, literature has always been a bridge, a means to traverse the dreams of misunderstanding, the chasms of misunderstanding, to build connections and to illuminate pathways of hope. Reflecting on the present day, I can only describe it as Kafkaesque. People can understand who have read Kafka. A time overwhelmed by disillusionment and uncertainty. Yet I firmly believe that literature, particularly the novel, has the power to navigate these turbulent waters. A novel serves as both a mirror to our reality and a beacon that guides us towards understanding and healing. It possesses the unique ability to instill resilience, inspire self-belief, and provide solace in the darkest moments. We are going through these moments now. This, I believe, is the ultimate purpose of literature, to remind us of our innate capacity for growth, transformation, and hope, even in the face of adversity. Let me share glimpses of my personal journey as a novelist. In 2014, Kashmir endured one of its most devastating floods, a catastrophe that paralyzed life for months and left indelible scars on collective psyche. During my stay in Jammu, following this tragedy, I was inspired to write a novel, Yutam Sirkit Gao, Kashmiri title. This work blends the historical trials and tribulations of Kashmir with the metaphor of disaster, capturing the resilience of its people amidst adversity. For me, novels are not confined to the personal experiences alone. They are vessels for universal themes. However, I must emphasize that without personal emotion and inner reflection, no theme can truly resonate with authenticity. This search of authenticity has been a recurring motif in my works, such as Talashu Jari and Daishu Maran. Talashu Jari, yet the search continues. Daishu Maran, God never dies, as Nietzsche said. Both these novels explore the ultimate truths of existence, delving into deep into life, death, and human condition. As Faulkner aptly said, the young men and women writing today have forgotten the problems of human heart in conflict with itself, which alone can make good writing. Because the tradition of novel writing in Kashmiri language is relatively young, having begun around 1947. To date, we have produced approximately 30 novels, including 16 of mine. My third novel, this is to receive the Academy Award. This is my 13th novel to receive Academy Award. How its immense potential to influence minds and rebuild walls of tolerance and brotherhood and German remains underutilized. Our storytelling tradition in Kashmir is deeply rooted. I recall the tales narrated by elders during cold winter evenings in dimly lit rooms. These oral narratives, brimming with imagination and emotion, were the spark that ignited my passion for writing. During my college days in early 1970s, I was deeply influenced by the works of Bhushan Nanda and Ibn Safi, whose romantic and suspenseful narratives captured the imagination of youth. Inspired by the craft, I began the journey as a novelist. As writers, we must acknowledge the barriers that hinder our literature from reaching broader audience. The lack of mutual engagement and appreciation within our literary circles has prevented our work from gaining the recognition it deserves on international platforms. I urge Sahitya Academy, as other institutions, to take proactive steps to bridge this gap. Let us try to create literature
that transcends linguistic and cultural boundaries, making its mark on the global stage. Honor and to all my fellow writers for their courage and conviction who are present here. Thank you. धन्यवाद सुनीता। अब मैं मुकेश धारी जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जिनको कोंकणी भाषा में उनकी कृति रंग तरंग के लिए पुरस्कृत किया है। Deo Barudis Deo means a very good day for all of you. I said it important. मैडम आदरणीय कुमुद जी ने कल जो भाषण किया हिंदी में, वो मेरे को इतना अच्छा लगा, and my family also, my brothers and sisters are here, that definitely I won't dare to speak Hindi before you. Because वो जो इतनी मीठी होती है ना हिंदी, and we suffer from complex, inferiority complex, when we listen to you all. So actually everybody is very forceful and powerful in his own mother tongue. There is no go, we have to take some help of some preach. So I will read some excerpts of my speech, which is already with you, that is circulated, not to bore you more. Good. So, respected Madam Kumuji, dignitaries over here, my dear friends, I feel quite overwhelmed and humbled. It was a very long journey in my life. I started writing or say scribbling something on paper when I was of 10 years age. That is on 5th standard. So my family took me to a great writer in my village. His name was Ravindra Kerekar, who later on a Gandhian thinker, polyglot, he won Gyanpith. I never knew that he was such a great writer. Great Hindi writer like Nambar Singh ji, उनके घर में मैंने खाना खाया उनके साथ, काफी मराठी अंग्रेजी काफी लेखक, लेकिन I never knew that my mentor was such a great writer and they are great writers. So it was really a beautiful stage platform for me. So I was quite fortunate in this regard, and I was groomed under it. I grew up in the lap of beautiful green nature and hillocks of Goa. There are beautiful streams, brooks and of water, flowers and farms. My village, Mardol, is known as the village of flowers. So many different colorful flowers. So the rich biodiversity of my village made an immense impact on my upbringing and imbibed the strong values of literary germination and incubation in me. There is every year annual जाई कहते हैं, जैस्मिन को जाई कहते हैं हिंदी में, जैस्मिन फ्लावर, जाई, तो पूरा जाई होता है वहाँ जैस्मिन फ्लावर्स इन माय विलेज, and there is a puja of goddess full of jasmines. My God, you can imagine, it's the most beautiful natural color than any other sea or whatever you call it. And that there used to be plays there, dramas, very powerful actors in Goa, and also directors and theatre art form is very much elevated, like you can say on National Park. So I would watch these plays, such a plays, the scripts and dialogues were aesthetically and neatly woven. So this impact made me a playwright later. The music activities in my village, Hindustan classical music, that has also left an impact on me. The music is very powerful form if you try to understand. I would say that every writer must learn classical music or the fundamentals of it. But my family is a family of having the legacy of music, art, culture, literature, poetry for 3 generations, and the 4th generation is into it. More are musicians, the lawyers, and all my brothers, cousins. So my father was an eminent tabla player and one of the great finest players in Goa, who also Akhawat. So this taught me without learning what chaptar is of 10 matra, bits, or ek tal of 12 bits, or 16 bits of tinta. So it gives me some rhythmic expression in my writing, in my speech. It also helped me as I was a news reader for radio, of writing and the sentences and reading. So it is very important in drama again for the dialogues.
So later on the music was so in and out with me, portable music, it's just reverberating all the time. So I wrote a play, Do Re Mi Fa Sa Re Ni Sa. Do Re Mi Fa means this particular verse. Do Re Mi Fa Sa Re Ni Sa. So that was with the music in the play and the play in the music line. It's very powerful tragedy of one of my friends. I just portrayed in a different way. So literature is a beautiful form of art. I believe it may not solve problems. My writing will not solve any problems. At the most, it can give some clarity to handle problems. That's all. Fine. If at all it gives, fine. If the problems are solved, nothing will remain in this life. I have a song, and let me sing it in a different way as I want, like essays and dramas. The claps, they give some validity, applause. This is one of the applauses of Sahitya Akademi Award. So, at another, my dear friends, mathematics was my passion in school and college days, and I specialized in it. And it has again helped me to put my plays, every act, in duration mathematically. You cannot put something in there lopsided for one part of a drama for 20 minutes, another for 5 minutes. So everything, the moments, diagonal, hypotenuse, everything, it has helped me. So I turned back to mathematics after teaching few years in that because of intense liking for literature, media, translation and linguistics. It is a great hobby to read a life more than the books. It's a celebration, I would say. The beauty of life and nature fascinates me from Goa. I would like to request all of you to come down to Goa and to go to the hinterland to enjoy the beautiful Harita Kranti there or there, which is still sustains. The complexity, uncertainty, challenges in the life made me delve deeper in exploration of mystery of life on spiritual and philosophical planes. And the outpourings are all these musings in my writings, whether they are reflective essays, whether they are, travel or whatever it is. Last week my play was presented. I saw many people there, they're simple people, they enjoy it. Because they don't have patience to read it, your story. And song, they take the words, everything. To once these and you must work hard. I do my effort in that respect. Just for your information, as a writer, let me tell you that writing play is not easy. It is very tough because unless you go into that, you won't understand how the director, the actors, the technicians change your dialogues. They make you cry. Sometimes even deleting one page because you say it is dragging now. It is going beyond duration and so on and so forth. Because they know how to use that particular chemical to the audience. They are masters of that particular art. But a good writer can give good script. And the smartphone and technology and social media have set forth many challenges, easing and facilitating our life, but also posing some challenges. We must accept the challenges, and also there is a threat to the regional language. Very frankly, we must work hard, the writers, to do something for that was discussed yesterday. Very important, last but not the least almost, I personally live focused in developing humanness in me. That is what I believe is the first priority we must give. मनुष्यत्व जो है अच्छा काइंडनेस प्यार वो अंदर में विकसित हो जाए इस कार्बोरेटर में नहीं तो अच्छा नहीं आता है उसी में से. That is what I feel. Somebody says me that now it's okay, you must stop writing. I was okay, but somebody says that there is something बेसुरा हो गया आपका संगीत मनुष्यत्व का. That would be something that would again make me introspect, and it is a very serious thing. So that is personally I feel. I don't claim or exhort somebody or appeal that you do that. But I feel Manushyattva, Manispad we say in Konkani, that is the first for me, and then Lekak for me.
लेखक अच्छा हो लेकिन मनुष्य अच्छा नहीं हो तो किसको तो चाहिए आपको प्ले देखने के लिए। पराजय मृत्यु से श्रावस्ती में एक प्रसन्नता छा जाती है। उपन्यासकार का निष्कर्ष है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत हारता रहा, इस बार ईसा की 11वीं शताब्दी में भारत भूमि विजय से प्रसन्न है। राजभवन से बाहर संपूर्ण नगर में विजय घोष गूंज रहा था, तारों और चंद्रों से सजकर आकाश में प्रमुदित हो रहा था इस महत्वपूर्ण विजय। इस प्रकार शत्रु प्रसाद ने अतीत के गौरवपूर्ण और पीड़ादायक दोनों पक्षों को चित्रित करते हुए निरपेक्ष दृष्टि से उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। उनके उपन्यास अतीत को वर्तमान से जोड़ने के प्रयास हैं। उनके उपन्यासों के विशेषण से कुछ विशेषताएं पाठकों के समक्ष सामने आती हैं। डॉक्टर शत्रु प्रसाद के उपन्यासों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पक्ष का प्रगतिशील रूप दृष्टिगोचर होता है। सरस्वती सदा मीरा में सिंधु सरस्वती संस्कृति तथा कीकर संस्कृति के एक सूत्र में विरोध दिया गया है और उसमें किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं है। अद्वैतवादी चिंतन इस एकत्व का आधार है। याज्ञवल्क्य की समन्वित दृष्टि का विकास स्वामी विद्यारण्य और कबीर दास में दिखाई देता है। वैदिक और ब्राह्य का समन्वय ही गोस्वामी तुलसीदास का शैव वैष्णव समन्वय है। शत्रु प्रसाद की प्रगतिशीलता प्रगतिवादी चेतना का पर्याय नहीं है। राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के बाधक तत्वों को दूर कर समत्व की मूल भित्ति पर सांस्कृतिक भवन खड़ा करना लेखक का उद्देश्य है। डॉक्टर शत्रु प्रसाद के उपन्यासों के पात्र याज्ञवल्क्य, विक्रमादित्य, हरिहर गुप्ता, स्वामी विद्यारण्य, कबीर दास, महाराणा प्रताप, हेमू, दारा सिकोह, संत सरमद, उधो दास, गुरु तेग बहादुर, कुमार महेंद्र, कोटा देवी, आनंद भिक्षु, सुहेल देव राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकत्व के प्रतीक है। डॉक्टर शत्रु प्रसाद के उपन्यास सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समन्वय का आधार तैयार करते हैं। वैदिक रुद्र और ब्राह्य शिव का समन्वय, कुमार विषमशील द्वारा गणों में गण संघों में समन्वय, स्वामी विद्यारण्य के प्रयास से सभी संप्रदायों द्वारा अद्वैत चिंतन का स्वीकार, अरावली का मुख्य शिखर में पिछड़े हुए आदिवासी वर्ग में विवाह द्वारा सामाजिक समन्वय, सख समुदाय का भारतीय समाज में विलय इसके अन्यतम उदाहरण है। अपने उपन्यासों में शत्रु प्रसाद ने इस विश्वास को दृढ़ता के साथ अभिव्यक्त किया है कि सामाजिक समरसता अद्वैत दृष्टि से ही संभव है। उनका मानना है कि अद्वैत दृष्टि से दूर हो जाने के कारण ही समाज विखंडित हुआ और फलस्वरूप राष्ट्र दुर्बल। तुम भद्रा पर सूर्योदय के स्वामी विद्यारण्य, सुनो भाई साधु के कबीर दास, श्रावस्ती का विजयपुर के नाथ चंद्रनाथ, दारा सिको दहशत के दंश के दारा सिको आदि के माध्यम से समाज में समतावादी अद्वैत भाव की प्रतिष्ठा लेखक का उद्देश्य है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर शत्रु प्रसाद एक राष्ट्रवादी रचनाकार हैं। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, इसलिए उनके उपन्यासों में राष्ट्रीयता की प्रखर अभिव्यक्ति हुई है। शत्रु प्रसाद के उपन्यासों में स्त्री अस्मिता की रक्षा पर विशेष बल दिया है, उसके सत्य रूपा व्यक्तित्व को महत्व दिया है। डॉक्टर प्रसाद मुगलों के युद्ध में बस 2 मिनट युद्ध में बंदी बनाई गई स्त्री को माले गनीमत समझने की वृत्ति की निंदा की है। रहीम की पत्नी यास्मीन को ससम्मान रहीम के पास पहुंचा देने का वृतांत स्त्री अस्मिता की रक्षा का उदाहरण है। शत्रु प्रसाद के उपन्यास में पुरुषार्थ और कर्म का स्पष्ट संदेश है। मनुष्यता की स्थापना उनका संदेश है। शत्रु प्रसाद जन्मना वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। सरस्वती सदा मीरा में याज्ञवल्क्य जनक से कहते हैं वर्ण व्यवस्था भी कर्मणा ही है। जन्मना और कर्मणा में एक समन्वय लाया जा सकता है। विषमता को दूर करने के लिए परम चेतना, एक सदासी और एक पुरुष भाव का संस्कार लेना होगा। वर्णगत अहम और दम्भ को पाप माना जाएगा। कर्मणा वर्ण व्यवस्था का पक्ष लेकर शत्रु प्रसाद ने व्यापक मानवता का संदेश दिया। सर्वम खरिदम ब्रह्म का गंतव्य भी यही है। वस्तुतः शत्रु प्रसाद के उपन्यास यद्यपि इतिहास की विभिन्न घटनाओं पर आधारित हैं, पर उनका लक्ष्य वर्तमान की विसंगतियों से समाज को मुक्त कर एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति की स्थापना। मित्रों, ऐतिहासिक उपन्यास और कथा के लिए वो पात्र चाहिए। नॉवल का मेन पात्र करके ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास दुनिया में आए हुए हैं। कुछ वर्ष पहले एक बहुत फेमस सीरियल आई, फिल्म सीरियल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। J.R. टॉल्किन नाम के एक उपन्यासकार थे, उनके उपन्यास पर यह सीरीज आई थी। और मुझे अगर किसी ने पूछा कि
दुनिया में सबसे बड़ा सक्सेसफुल ऐतिहासिक नॉवल कौन सा है, तो मैं बोरिस पास्टरनाक का डॉक्टर झिल्याको इसको मैं एक नंबर क्रमांक 1 दे दूंगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, उसमें रूसी क्रांति है, प्यार है, जलती हुई कविताएं है, जलती हुई क्रांति है। अभी मुगल खानदान की, मुगल सल्तनत की बात कही, आपको मालूम है फिल्म मुगल आजम, और मुगल आजम में मेन कैरेक्टर है अनारकली। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अनारकली इतिहास में कहीं भी नहीं थी। 1920 के दशक में एक उर्दू नाटककार इम्तियाज अली, जो आगरावासी थे, वहां की एक नाटक कंपनी चल नहीं रही थी, इस वास्ते कुछ ऐसी एक रचना चाहिए थी जो लोगों को पसंद आ जाएगी। उसमें उन्होंने क्या किया कि अकबर जैसे बादशाह के खिलाफ बगावत करने वाला उनका शहजादा सलीम, और जो बागी पुत्र अकबर को चुनौती देता है, यह संघर्ष भरी कहानी बड़ी रोचक बनाने के लिए उन्होंने अनारकली का पात्र का निर्माण किया। वो उसके मस्तिष्क से जन्म लिया अनारकली ने। मैं दूसरा आपके सामने पक्ष रखूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके लाइफ पर मैंने जो महानायक उपन्यास लिखी, मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिस्टोरिकल रिसर्च, सो मैं एक प्रबंध लिख सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो प्रबंध होते हैं वो प्रबंध खाली लाइब्रेरी की संपदा होती है, और इसके कारण मैंने ये उपन्यास लिखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आपको पता है एक तरफ अपने जीवन काल में ही दंत कथा बन चुके थे महात्मा जी। उसी समय प्रगतिशील विचारों के दो बहादुर नौजवान थे, एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू और दूसरे का नाम था सुभाष चंद्र बोस। और हम बारीकी से देखें तो मद्रास कांग्रेस के समय में एक घोषणा गूंज उठी थी पूरी देश में, हिंदुस्तान के दो लाल, सुभाष और जवाहरलाल। लेकिन जवाहर और सुभाष, इन दो युवक नेताओं की मित्रता कांग्रेस में कई लोगों के लिए चिंता का विषय बनी थी। महात्मा जी भले ही मानवता के पुजारी, बड़े शांति पुरुष थे, इसके बावजूद उनके व्यक्तित्व में एक सुप्त तानाशाह था, डिक्टेटर था। सुभाष और जवाहर की मिलीजुली शक्ति की चिंता सिर्फ गांधी जी को नहीं, बल्कि जवाहरलाल के पिता बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू को भी थी। यह सिर्फ मेरा अनुमान नहीं, बल्कि मैं दावे के साथ एक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई पुस्तक आपके सामने रखूंगा, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और उसमें शामिल किए गए पत्र आप जरूर पढ़िए। एक उपन्यास के रूप में मेरे पास एक तीनों के बीच में जबरदस्त पत्र व्यवहार, दस्तावेजों, कागजात थे, लेकिन उन तीनों के रिलेशंस एज अ राइटर बहुत ही छोटे समय में मैं कैसे लिख दूं, इसके लिए मैं एक डिवाइस की तलाश में था, और सुदैव से ये मेरी पहली हल हो गई। गांधी जी के ढेर सारे पत्र मेरे पास थे, उसमें मुझे मालूम पड़ा जब बापू पोरबंदर में रहा करते थे तब उन्हें सर्कस देखने का बहुत बड़ा शौक था। उनके पिता करमचंद उन्हें अपने साथ सर्कस दिखाने के लिए जाया करते थे। महानायक उपन्यास में मैंने लिखा, गांधी जी को अपने बचपन में देखे सर्कस का वो प्रसंग याद आता है। उस सर्कस में अत्यंत कड़क स्वभाव का डिक्टेटर रिंग मास्टर था। उसके हंटर की फटकार से सर्कस के सारे छोटे बड़े जानवर थरथराने लगते थे। एक दिन सर्कस में दो बच्चे, लायन कब्स, शेर के दो बच्चे लाए गए। वो दो बच्चे जब एक साथ रहते थे तो पूरे सर्कस को अपनी दहाड़ों से ठहरा देते थे। कई बार तो रिंग मास्टर के सख्त स्वभाव और उसके रोग की भी जरा भी परवाह नहीं करते थे, जिस कारण सबके सामने रिंग मास्टर रोज परेशान रहता था।
कंपनी का अनुशासन भी भंग होता था, मगर रिंग मास्टर को अंततः अपने हिसाब से सर्कस को चलाना था, इसलिए उसने एक दाव चला। जब एक बार सर्कस की गाड़ियां एक जंगल में से गुजर रही थी, तब रिंग मास्टर ने कई देर गाड़ियां बीच में रुकवा दी और मोटर के पीछे का दरवाजा खुले से खोल दिया, जिस कारण उन दोनों लाइन कब्ज में जो बहुत जुझारू था वो बाहर कूद गया। रिंग मास्टर ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। इसी तरह दोनों शावक बिछड़ गए। नतीजा यही हुआ कि बचा हुआ जो लायन था उसकी आवाज अपने आप कम हो गई। जैसा रिंग मास्टर ने सोचा था, वो विराट सर्कस पूरे उनकी मिट्टी में आ गई। एक छोटी सी एग्जाम्पल से मुझे ये मदद मिली और ये तीनों का महाकाव्य जैसा किरदार में प्रेजेंट कर सका। दोस्तों, मैं आई टेल यू इन 1997 मैं जापान में गया था। एज अ राइटर मुझे एक ही चिंता थी कि जापान एक प्रगतिशील देश है। ऐसे एक देश ने सुभाष चंद्र बोस नाम के हिंदी नेता को खाली एक नेता नहीं माना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट हुआ एक कंट्री जैसा वो उनको मानते थे और पूरा उन्होंने सहयोग दिया था। कितना सहयोग कि जब इम्फाल की बैटल हुई थी तब जापान के 3 डिविजन्स सैनिक सुभाष बाबू के झंडे के साथ चल रहे थे। 3 डिविजन्स मीन्स मोर देन 60,000 पीपल और उसमें 40,000 मर चुके उस पूरी यात्रा में। तो मैं इतिहास को बार बार पूछता था कि जब नेताजी जापान में गए तो उनके साथ कौन था, और तब मुझे इतिहास ने ये फाइनली बताया कि जब नेताजी जापान में गए तब उनके साथ उनके लिबास के सिवाय और कोई नहीं था। और इसके खोज में मैं 1997 में टोक्यो में गया। वहाँ एक रेंकोजी मंदिर नाम का एक मंदिर है, बुद्धिस्ट मंदिर, जहाँ सुभाष बाबू के रिमेन्स रक्षा रखी हुई है। पहले दिन मेरा एक भाषण था, इट वाज पब्लिश्ड इन डेली न्यूज। तो जब मैं मंदिर के पास गया तब मैंने देखा पीले रंग के 80 या 90 साल के 22-23 लोग खड़े थे मेरे स्वागत में, और उन्होंने ऐसा जैसे नेताजी तिरंगे को सैल्यूट करते थे वैसा उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। और उन्होंने 3 गाने वो उनके मुंह से मैंने सुने। वो 3 गाने क्या थे? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। और दूसरा गाना वंदे मातरम। तीसरा गाना, उनका स्टाइल भले जापानीज थी फिर भी शब्द सच्चे थे। जापानीज लोग तीसरा गाना गा रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उनकी आंखों में जो आंसू उमड़ के आए, मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, ऐसे आंसू मैंने मेरे देश में किसी के आंखों में नहीं देखे। तो क्या असर था सुभाष चंद्र बोस का? मैंने उनसे चर्चा की, उनको पूछा कि आप नेताजी की याद कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि 40-50 साल पहले हमारे जिंदगी में एक आदमी नहीं, एक फरिश्ता आया था, और उस फरिश्ता ने हमें न्याय, सत्य, क्रांति और गुलामी से आजादी, ये सब हमें सिखाया है। जब मैंने वहां के एक मिनिस्टर का लेटर पढ़ा, मुझे एक्चुअल आंसर नहीं मिल रहा था। उस लेटर में एक ही पैराग्राफ में किंगे मिस्तो और फॉरेन मिनिस्टर थे, एक ही पैराग्राफ में उन्होंने नेताजी का जिक्र किया कि सुभाष चंद्र बोस नाम का एक हिंदी नेता जब हमारे पार्लियामेंट में आता था और हमारे प्राइम मिनिस्टर तोजो के सामने डट के जब खड़ा रहता था और आपके गुलाम देश की कहानी करता था, तब वो उनके बातों के साथ उनके आंखों में भरे हुए आंसू और उनका ये सब ठाट देखकर हमें ऐसा लगता था कि ये आदमी हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा नहीं है, ये स्वर्ग में पहुंचा है, हेवन में गया है और विधाता के साथ, ऑलमाइटी गॉड के साथ अपने देश के वास्ते जूझ रहा है। ये जब हमने देखा
तब हमारी पत्थर जैसा हृदय मोम जैसा पिघल गया और हमने सुभाष बाबू को वो सहयोग देने की बात कही। तो पब्लिश किए हैं और मैंने उसमें बताया है, पहले बार लोगों को जब हिस्ट्री से सिनेमा से मालूम होता है कि शिवाजी जैसे युग पुरुष का संभाजी जैसा एक बहादुर लड़का था जो औरंगजेब के खिलाफ खड़ा था पत्थर जैसा, और जिसको जिस तरह से औरंगजेब ने मरवाया, ये सब बातें देखकर सबको बहुत दुख लगता है। तो हिस्ट्री का पता, जैसे तुगलक जैसा नाटक हो या वैशाली की नगर वधू हो, तो हिस्ट्री का जिक्र जब आप कहानी और उपन्यास की सहयोग से करेंगे तो आम पाठकों के पास वो पहुंचता है, ऐसा मेरा कहना है। और एक बात पूरे दुनिया के स्तर पर कई बार साबित हुई है कि कभी दैवीय सहयोग से तो कभी अपने पराक्रम से असामान्य ऊंचाई को छूने वाले महानायक, उनकी तरफ समाज का पाठकों का ध्यान रहता है। देशों के भविष्य को मोड़ देने वाली घटनाएं जैसी पानीपत का जंग और महाकाव्य जैसी वीर गाथाओं और प्रेम कथाओं का कभी अंत नहीं होता। मैं एक चुटकी सी बात कहूंगा कि जब सुभाष चंद्र बोस महात्मा जी को जाके बरदा के आश्रम में मिलते थे, एक बार वो गए, बहुत बीमार थे, तो बापूजी ने क्या किया, बापूजी ने नदी की मट्टी लाई, गिली हुई मट्टी, और वो अपने हिसाब से सुभाष बाबू को पूरा उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल सर पर बदन पर करने के लिए कहा, कुछ वन औषधि भी दे दी। तो सुभाष ने हंस के पूछा, बापू क्या ये दवाएं मेरे इन दवाइयों के कारण मेरा इस बीमारी से छुटकारा होगा? तो बापूजी हंसते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरी औषधि हर हिंदुस्तानी नेताओं को रामबाण औषधि साबित हुई है, लेकिन बेटा तू ही एक ऐसा है जिसके सामने मेरी मात्रा नहीं चलती। तो एक छोटे से, तो कभी कभी क्या पूछते हैं कि जब हिस्टोरियन का उपन्यासकार ऐतिहासिक लिखता है उसमें सच कितना होता है और झूठ कितना होता है, कल्पनाएं कितनी होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा 1 मिनट में खाली। ये इसी सब्जेक्ट पे अगर घुस गए हम महानायक में, सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस से बैनिश किया, हद्दपार किया, और ये कांग्रेस का रिजर्वेशन हुआ कलकत्ता शहर में जो सुभाष का शहर था। और ये बात सही है कि जब जब नेहरू जी कलकत्ता जाते थे तब सुभाष के घर में ही ठहरते थे, और उसी दिन सुभाष को बैनिश किया, उसी रात को नेताजी के घर में ही, सुभाष बाबू के घर में ही जवाहरलाल जी रुके थे। और हमेशा की तरह दूसरे दिन सुभाष बाबू ने मोटर निकाली और वो अपने दोस्त को लेकर हावड़ा स्टेशन की तरफ जाने वाले थे। दोनों मोटर में बैठने वाले थे, इतने में सुभाष बाबू की भांजी गीता, जिसका नाम, वो दौड़ते आई। उन्होंने एक गुलाब की डंडी लाई और गुलाब का डंडी का वो एक फूल सुभाष बाबू के हाथ में दिया। सुभाष बाबू ने वो फूल काट दिया और वो नेहरू जी के कोट को लगाने लगे। तब नेहरू जी ने देखा कि खून की एक बूंद आ गई है। वो बोले, अरे सुभाष, खून खून। तो सुभाष हंस पड़े। उन्होंने 2 कदम वो पीछे गए और हंसते हुए बोले, बड़े भाई जाने दीजिए, भगवान ने, विधाता ने फूल दिए हैं आपने लिए, कांटे रखे हैं मेरे लिए। मुझे लगता है ऐसे उदाहरण से उपन्यासकार अपनी कहानी रोचक बनाता है। इट शुड बी बेस्ड ऑन द रियलिटी, बेस्ड ऑन द बिग रिसर्च। और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हिंदुस्तान में पाठक रहेंगे, जब तक लिटरेचर रहेगा, तब तक ऐतिहासिक उपन्यास जरूर रहेगा। उसके पॉपुलैरिटी के खिलाफ कई लोग थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर भी जो योगदान है हमारे
नॉवलिस्ट हिंदुस्तान के, जिन्होंने इस एरिया में बहुत काम किया है। नहीं तो आपको अभी वैशाली की नगर वधू जैसी नॉवल है, या के.एम. मुंशी का नाम अभी बहुत बड़ा उन्होंने जिक्र किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हना आप्टे, वृंदावन लाल वर्मा, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। और इस पर आज जो डिस्कशन हुआ और यू एंजॉयड इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पालते रहे। थैंक यू। एक छोटी कविता है, हैंगर। एक हैंगर सा नहीं है वो जिस पर लटके हैं किसी और के विषाद के पैराहन। एक हैंगर सा नहीं है वो जिस पर लटके हैं किसी और के विषाद के पैराहन। एक हैंगर सा है उसका विषाद जिस पर लटका है वो चीथड़ों सा। एक हैंगर सा नहीं है वो जिस पर लटके हैं किसी और के विषाद के पैराहन। एक हैंगर सा है उसका विषाद जिस पर लटका है वो चीथड़ों सा। एक खाली जगह है जो विषाद के मुकाबले में खड़ी है। उस जगह न हैंगर है और न लटके हुए चीथड़े। आओ हम दोनों उसी जगह मिलते हैं। एक और मैंने उसे संदेश भेजे, उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने उसे फोन किया, उसने रिसीव नहीं किया। ऐसा ही कुछ बार बार हुआ। अल्प अंतराल के बाद उसकी खामोशी ने मेरी व्याकुलता को पंख दिए। मैंने अहंकार के आकाश में उड़ान भरी, हवा पर सवार सोचा। उसे मेरी परवाह नहीं, कोई और मिला होगा उससे, मेरी आवश्यकता न रही होगी। खींच कर फोन ऑफ किया, फिर वो फोन करता रहा, संदेश भेजता रहा, पर मैं नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। रिश्तों के प्रश्नों के उत्तर व्याकुलता के नहीं, जिज्ञासा के भी नहीं, अहंकार के हैं। अहंकार ठहरने की मोहलत छीनता है और फोन का नेटवर्क भी। सुनो, उत्तर ना मिले तो प्रश्न का उर्स मनाओ। उर्स ठहराव की पकड़ है और नेटवर्क की भी। The office was bunked. I was in the building, which was huge building, burning a wooden building. So the reason I mentioned this particular episode is that the persons who were actually had set that on fire were locals. The persons who were doubting it were also locals. They had two traditions going on simultaneously. One is the classical Hindu tradition. The other one is the rebellious Islamic tradition. Both two together. But the dominant voice of Kashmir at that point of time was of the Kashmiri Pandits who were later on sent away from Kashmir. And they have a grouse that they have not treated well. He belongs perhaps to the Kashmiri Pandit community who are excommunicated from Kashmir now and living in Delhi. So they have a life experience, ladies and gentlemen, which requires an ethical treatment. It is not even Agni Shekhar and others who have been writing from there, from the fringe as they call it, have been requested that this experience of theirs needs to be chronicled as one of the devastating experiences of a non-refugee who treats himself as a refugee. But the tone, the presentation, the incisiveness and the classical strain in his poetry is something remarkable. We like it. Thank you very much. Now तो मैं साहित्य अकादमी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस यहाँ पर कविताएं पढ़ने के लिए बुलाया इस साहित्य उत्सव में। और अपनी बात शुरू करती हूँ मैं। महाभारत मेरा बहुत ही प्रिय विषय है
उसके इस किताब के निमित्त नहीं जो 19 स्त्रियों पर कविताएँ हैं, उसकी आखिरी कविता मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। यह कौन सा देश है, कौन सा राज्य, कालखंड कौन सा है, कलयुग का कौन सा चरण है। किस काल में द्यूत नहीं खेला गया, किस काल में लाक्षागृह नहीं बने, किस काल में मानव नहीं बटा अपनों और अन्यों में, किस काल खंड में नहीं लड़ा वह श्वानों की तरह मांस खंड के लिए, किस काल में सत्य नहीं बिंधा, किस काल में सत्य नहीं बिंधा चिड़िया की आशा। यह कौन सा देश है, कौन सा राज्य, कालखंड कौन सा है। यहाँ से आगाज करते हुए मैं अभी बहुत हाल ही की एक कविता आप लोगों को सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है रियाज। मैं परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर के चलने वाली कवि हूँ। तो इस कविता का शीर्षक है रियाज। बच्चा होठ पर होठ दबा प बोल रहा है, प प प। होठ पर जमी लाल टपक रही है ठोड़ी पर, वह उस सबसे निर्लिप्त प कह रहा है अविकल। माँ को देख बच्चा खिलखिलाता कहता जाता है प प। बोले में गुथी काले पोतों वाली चूड़ी पहने हथेलियों से थाप दे देकर कहता जाता है प प। वह थाप देता है अपनी एड़ी से प प। माँ कहती है रियाज कर रहा है बच्चा। माँ कहती है रियाज कर रहा है बच्चा ध्वनि का। कल को वह अनेक ध्वनियाँ मिलाकर शब्द बोलेगा, बोलेगा वाक्य। माँ न जाने कितने शब्द गड़े ले रही है मन ही मन। उन सबसे बेखबर बच्चा रियाज कर रहा है अपनी पूरी देह से। मेरी कविता प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है। और अब मैं अपनी एक प्रिय कविता सुनाऊंगी। एक सुनाए जी, एक ही सुनाऊंगी। और ये कविता है दुर्शला कविता की है और इसका शीर्षक है प्यारा भी। युद्ध हो चुका है और जयद्रथ मारे जा चुके हैं। उसके बाद वह दुर्शला ही थी जो सचमुच लाड करती थी भीम। वह दुर्शला ही थी जो सचमुच लाड करती थी भीम को। सब भाइयों में प्यारा भीम कंधे पर बिठा बहन को ढेरों फल ऊपर डालियों पर लगे फूल तोड़वा देता था पल भर। भीम के कांधे पर बैठी दुर्शला अक्सर हाथी पर बैठे हमने कल्पना की। खूब खिलखिलाती हंसती गाती इतनी ऊंची हो जाती थी दुर्शला भीम के कांधे पर बैठे। आज रणभूमि में जयद्रथ की मृतदेह देह दुर्शला की आंखें खोजती हैं उन्हीं कांधों को जिन पर सिर धर वह बचा सके स्वयं को लहू के दलदल में धंसने से। युद्ध भूमि में दूर बड़ा भीम का शत विक्षत लोहे का पुतला मुस्कुरा रहा है मन मन मुस्कुरा रहा है मन मन। और इसके साथ एक कविता सिर्फ 2 पंक्तियां
कविता को पूरा करने के लिए ये कविता पूरी है, इसकी दो पंक्तियां। कोई नहीं देखता इस समर को छोड़ राष्ट्र के, जिसकी बुलाए मचल रही हैं भीम का आलिंगन करने को। हार मास का इंसान कोई बचा ही कहा, सब के सब लोहे के पुतलों में बदल गए। चलिए हम न बदले उनके पुतलों में, इंसान में किसी महाभारत की कविता गंभीर नहीं था, तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम सोच से रिटर्न कर रहे हैं हमारे सिविलाइजेशनल सोच, एंड दैट इज अवेटिंग द रिवाइवल ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 50 years. Number of stories of Mahabharata have been written, but going to the details of Mahabharata means something else. I believe Gila started doing some work initially, that was in the 60s. 60s when Gilal, Purushottam Lal started doing it in English, and thereafter even British Nati did some, and then we have all been doing it. We have all been doing it. And we have been doing it all in different directions, because we have to find the root of our input. Now, you have seen that this particular session, please, this family, to innocence, to romance, the board of poets who came here said that we have forgotten the revolution. Now it's our pain of identity. Our identity is that. So all this taken together gives us India. And I believe every poetry reading session must be that. It only requires an interpretation, little interference to interpret what exactly is in the end. I will come to Rajastri, who is from Malayalam. I will be a Malayalam poet, but she is reading poetry in English. She is not reading Arabic poetry, but in English. Rajastri. Basically Bharatanatyam dancer, but somehow at some point in my journey as an artist, I also realized that my some, I'm basically a Bharatanatyam dancer. At some point in my artistic journey, I also realized that my thoughts have some shape-shifting abilities. So I continued writing as well. So today I'll be reading a long poem, Manikarnika, conceived as a conversation between Ganga and the Karnika, that is earring that slipped off from Parvati's ear into the Ganges. So Manikarnika, aren't you holding me aloft, oh, the mother of hefty souls, quipped a chipped emerald dangling from its golden mold. You are known to shun the dross from your squirming board. Oh, the honor of firm resolute, squeeze me out from your lap. To be found alongside the shimmering lights during twilights upon your fluid cast. Oh, the silent trove of secret tales, the eternal green amongst sacred studs of the daughter of Himavan or her fiery half, the son of Nam. I am born of fluids, of born and unborn, of mothers and daughters, fathers and sons, of tears unshed, of those withheld, of pain unspoken, of anger unspent, of men and women. I smell of ruined lives, of young maidens. The smoky frills at my bounds mimic a wail or many, unheard for its dormant present, spilled over my grey arms long past, as is seen from the ghats, but rests at the bottom of my sacred chest. There, buried secrets come alive and resounded as a slurpy bubble around my surprise caves.
To see my lucid self and join your tinkling partner, meet me at the Chakravalam. Its horizon, where I cast a glance at my gigantic partner, whose enormous eyes behold the mammoth sight of my splendid margins, where death is a performance, where crimson moves empower the scattered whites above to wheel a rescued soul to withering skies by winged pauses amid choreographed gestures, where men in reds wave their splendid arms in rhythmic tunes, tethered to earth only by measured steps, thus ushering a tired soul to cast off itself from an echo board of a stilled past, bidding the death adieu, dancing on its teary egress, with nameless spectators adding to the scattered boom, when death is danced to whooshing times. I pray to the meek of the lot to not be drowned into my dirty holes, to be born again a silent blister that bursts into ominous glee. Once it bears a rainbow on its impervious crest, shattering an imagined ovule of vibrant origin inside its frayed womb. O glitter of ears, you are a relief for my tired arms. O sparkle of the ear, you lie light on my lap, not hoping an embrace, not grappling with unsolaced worries, breathless of hushed words. You are the happiest to have known to me ever since my origin. You are not a strain of a haunting melancholy, weightless and clueless you are like a height of joy. Hey, the jewel of the immortal, friend of the dancing bell, hold on to my bosom, suckle on my grief, allow me to flow until I see my wing commander who awaits at the helm to spew a word of judgment of my blazing shores. On the ocean of tears, aren't you seeing this? An open palm gone asunder from its melting wrist, a finger of its trapped in my flowery bend. Why are you allowing this? Hey, the glitter of ears, await a time when seared nipples scent my gushing tendons with burnt milk unsucked by tiny lips. Await a moment when tiny bits of whites are spurred to sky like rockets from its lighted tit. Palms and lines of fate would soon after melt into my dense haste. Strange, these flowing lights gather, not knowing when met last upon me. Souls of many were shown its trail to better skies of placid state from the glazing flow, where teary wings whisk away the blues of time in graceful Brahmaris. Brahmaris at times in dance. Yeah. Oh, the pride of sacred years, speak from the heart. Am I free of burdens as is seen from the gods? I live in the perennial time. The silent gaze of scarlet sky and fleeting blue of roaring eye shudder in unison forever along the smoky warmth of fading fire. And you, the lost forever, dwells ashore in noble fame, but remain ever in my quivering holes with your darling knell, as tufts of past and shifting nows flock alike to find you sane at the deadly card that takes your name, Manikarnika, of a divine game, where soul begins its noble ride and death is an opening dance.